انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا ہے، تو وہ بات تو پھر وہاں ہی رہ چکا. پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے پہلے کہا ایک پچھلا پریس کانفرنس میں، ہم ان پالیٹیشنز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، انگیج کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹلی مئی 9 میں انوالو نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو واقعہ تھا that crossed a line and that should be made an example of politically, administratively جیسے آپ نے کرنا ہے. باقی جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے، پیپلز پارٹی کے جو دروازے ہیں وہ نان ملیٹنٹ ونگ جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے، ان کے لیے کھلے ہیں. کون سا؟ بالکل کیوں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ کافی کم عرصے میں ہم نے کافی پروگریس کیا ہے شعبہ میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت تھا، اور خاص طور پہ جو ہمارا سوچ یا نظریہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ if you cannot if you don't have the resources, if you cannot afford it, تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو علاج لینے میں اور معیاری علاج لینے. تو اسی طرز پہ ہم نے NICVT جو دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل کراچی سے لے کے پورا تقریباً تمام صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ادارہ کھڑا کیا ہے، ہاسپٹل کھڑا کیا ہے جہاں مفت علاج ہوتا ہے. گمبٹ کا جو ہاسپٹل ہے خیرپور میں، وہ جنوبی پنجاب اور بلوچستان اور ناردرن سندھ کے عوام کو ابھی سے اپنا علاج وہاں سے کروا رہے ہیں، اور وہاں آپ کو فری لیور، کڈنی، لنگ، بون میرو، کینسر، میں بھول جاتا ہوں اتنے سارے جو النیسز ہیں جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، ان کا مفت علاج ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے NICH کے نام پہ چلڈرن کے لیے مفت علاج، چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہر ڈسٹرکٹ میں چلڈرن کی مفت ایمرجنسی کیئر، اور SIUT کے ساتھ ادیب رضوی کے ساتھ مل کے کڈنی کے علاج. بہت سے بچوں کا ہاسپٹل میں نے کھولا ہے سکھر میں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ ہر ڈویژن میں کم از کم باقی تمام صوبے میں اس قسم کے ہاسپٹلز ہو، تاکہ ایٹ دا پیپلز ڈور اسٹیپ وی پرووائڈ دیم ود فری ہیلتھ کیئر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کہ حکومت کے ادارے ایسے چل نہیں سکتے ہیں، مگر کم عرصے میں 2015 میں ہمارا ہیلتھ کیئر کا سیکٹر میں 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیولوشن ہوا، اور 2016 سے لے کے آج تک اتنے کم عرصے میں ہم نے اپنا ٹرشری ہیلتھ کیئر کا جو حکومت کے ادارے ہیں وہ اب عالمی سٹینڈرڈز کے بنا چکے ہیں. اور ہمارا دلی خواہش ہے کہ گمبت جیسے ہاسپٹلز، سکھر جیسے NIC جیسے ہاسپٹلز ملتان سے لے کے لاہور تک اور ان کے ارد گرد ہم ضرور بنائیں. دیکھو
बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। एक सिंपल बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड का बात मैंने उठाया है। ये शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से हैं। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा शिकायतें हैं वो जल्द दूर होंगे और उसके बाद में खुल के बात कर सकूँगा। I think next time I'll have to do 5 questions. Thank you everybody. मेरा ख्याल में काफी देर चला गया और रिपीट भी हो 40 मिनट्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अवाम बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए अभी तरस रहे हैं और मज़ीद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक़ फैसला तारीख़ साज है। नैब एक आमिर की जानिब से बनाया इदारा है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के फैसला था और सबका एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केसेस का सामना करने के लिए बिल्कुल अभी तैयार है और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कि छुप नहीं रही है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो कि तमाम केसेस का सामना कर रही है। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले भी केसेस का सामना करती आई है और अभी भी कोई ऐसा केस नहीं है जिससे पीपल्स पार्टी छुप रही हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक़ फ़ैसला अब तारीख़ करेगी और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो एक मुतवक्के फ़ैसला था। नैब एक आमिर की जानिब से बनाया इदारा था, उसे ख़त्म होना चाहिए। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब केसेस का फ़ैसला सुनाया है वो एक मुतवक्के फ़ैसला था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यही फ़ैसला सामने आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम केसेस का सामना माजी में भी किया है और पीपल्स पार्टी अभी वो वाहिद जमात है जो कि छुप नहीं रही है और तमाम केसेस का सामना किया जा रहा है। और नैब का जो इदारा है वो पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ है कि एहतसाब सबका एक जैसा होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज नैब तरामीम का लदम करार देने का फ़ैसला सुनाया है इस बात का फ़ैसला अब तारीख़ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक़ फ़ैसला अब तारीख़ को करना होगा। नैब एक आमिर की जानिब से बनाया गया इदारा है और उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद काजी साहब ने। काजी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब आपने गुफ्तगू सुनी बिलावल भुट्टो की, वो ये कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही फैसला आएगा और नैब तरामीम का रदम करार दे दी जाएंगी। देखिए, जो बिलावल भुट्टो साहब ने अभी बात की है वो ये की है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबका एहतसाब एक जैसा हो। कल इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, चूंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के वॉच लिस्ट में डाल दिए गए हैं तो वो बड़ा केयरफुली इसका जवाब दे रहे हैं, तो इसलिए अब हम उनके स्टैंस में एक तब्दीली भी देख रहे हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं अगर हम इसको डिसाइफर करें या सादा उर्दू में इसका तर्जमा करें तो इसका मतलब ये है कि हुजूर अगर हमारा आपने करना है एहतसाब तो फिर बाकियों का भी करें, मुस्लिम लीग नून का भी करें। इसका मतलब ये होता है कि जनाब ना अपना करो ना साड़ा करो। तो इस किस्म की मुझे ये बात लगी है। तो बाकी आप फरमाइए। ठीक है काजी साहब, ये भी इस बात पे भी कमेंट कीजिएगा। उन्होंने मजीद नैब के इदारे पे अपना मौक़िफ़ पेश किया कि नैब का जो इदारा है वो एक आमिर की जानिब से बनाया था और इस इदारे को ख़त्म हो जाना चाहिए और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए। तो कुछ क्लैरिटी नहीं है उनके बयान में। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी मुस्लिम लीग नून को कि इस एहतसाब के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो ख़त्म मुस्लिम लीग नून ने नहीं होने दिया था। मगर सवाल ये है कि जो इससे पहले भी आपने पेपर पे बात हुई थी, भाई हम कहाँ जाएं अगर पब्लिक एक्सचेकर जो है वो महफूज नहीं है, हमारी इमानतें महफूज नहीं है, ना FIA से हमें इंसाफ मिलता है ना नैब से हमें इंसाफ मिलता है, हर पावरफुल जो है वो अनटचेबल है, अबव द लॉ है। तो मतलब एक अजीब अवाम तो कंफ्यूजन की सूरत में है। ठीक है, अवाम के लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए ये एक वाहिद इदारा है। शुक्रिया सैयद काजी साहब, हमें अपना वक्त दे रहे थे।